Praise the Lord and greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मर्जी यीशु के पाक नाम में आप सबों के सामने मैं सलाम पेश करता हूँ। This evening, to worship our God, before we meditate on the Word of God, आज शाम को हमारे खुदा की इबादत करने के लिए, खुदा का कलाम का मुताला करने से पहले let us kneel down and look unto the Lord for His grace. चले हम घुटने टेकें और उसकी मदद के लिए दुआ मांगे। Our loving heavenly gracious Father, once again we thank you and we praise you, Lord. ऐ हमारे आसमानी प्यारे बाप, और एक बार हम आपका शुक्र बजा लाते हैं, हमद सना लाते हैं। Father, we thank you for sending your only begotten Son for us. ऐ आसमानी बाप, आपके इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते भेजने के लिए जमीन पर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। By His death on the cross and by His precious blood, we are forgiven and we are sanctified. हमारे खुदावंद के बेशकीमत खून की बदौलत और सलीब पर जो खुदावंद यीशु मसलूब व मकतूल हुए हैं, इनके बदौलत हम नजात पाए हैं। And also, Father, you raised our Lord Jesus Christ from the death, और आसमानी बाप, आपने हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से आपने जिलाया, proving that He is the only begotten Son of God. और इस तरीके से आपने साबित किया कि वो खुदा के इकलौते बेटा है। And also, through the resurrection of our Lord Jesus Christ, you blessed us in many ways. और हमारे खुदावंद यीशुआ की मुर्दों में से जी उठने की बदौलत आपने हम पर बहुत सारी नेमतें बरसाई हैं। Father, this evening strengthen us, Lord, to meditate on Thy Word खुदावंद आज शाम को दरख्वास्त करते हैं कि आपके कलाम का मुताला करने के लिए हमें मजबूत बनाएं, and speak with all of us, Lord. और हम सबों से आप गुफ्तगू करें। And also, Father, I pray that, Lord, hide us under your arms. और दरख्वास्त करते हैं आसमानी बाप कि आपके हाथों के, आपके बाजुओं के तले हमें छुपा कर रखें। Committing ourselves unto your loving hands with the humble heart, I pray in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. छोटी सी दुआ शुक्र अदा करते हुए हमारे खुदावंद और मर्जी यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Let us turn our Bibles to the Mark's Gospel. अजीजों, चले हम मरकुस की खुशखबरी खोलेंगे, 16th chapter, verse number 6. 16वां बाब की 6ठी आयत। And he saith unto them, Be not affrighted, ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen. He is not here. Behold the place where they laid him. उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशुआ नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। Our Lord Jesus Christ died on the cross and was buried in the tomb. हमारे खुदावंद यीशुआ सलीब पर मसलूब व मकतूल हुए और कब्र में मकबूर हुए। The interesting thing is that in the Matthew's Gospel we see that यहाँ पे एक दिलचस्पी की बात यह है कि मत्ती की खुशखबरी हम देखते हैं, and our Lord Jesus Christ died before the day of Sabbath. हम यहाँ देखते हैं कि सब्त के दिन से पहले हमारे खुदावंद यीशुआ वफात पाए, On the day of preparation, मतलब वो तैयारी के दिन में, and evening before this day of preparation is closing, and all the women and the disciples of Lord Jesus Christ went to their homes and rested, and they obeyed the command of God for Sabbath. और शाम तक क्या हुआ था, खुदावंद यीशुआ को कब्र में रखने के बाद यहाँ पे शागिर्द लोग और औरतें और सब कोई जो भी उनके साथ थे, वो सब के सब घर वापस गए और शब्द को मनाने के लिए खामोश रहे। They obeyed the command of God that they should take the rest on the Sabbath. खुदा ने हुक्म दिया था कि सब्त के दिन आराम करना है, कुछ काम मत करना। But the Pharisees and the leaders did not obey that command to prove that he is not the Son of God, and also they tried that to stop the resurrection of our Lord Jesus Christ. यहाँ पे हम देखते हैं कि आम लोगों ने खुदा का हुक्म माना, लेकिन फकी और सरदार काहिनों ने क्या किया था, खुदा का हुक्म नहीं माना, लेकिन इस बात पर ज्यादा जोर देने लगे कि किसी भी तरह खुदावंद यीशुआ को कब्र से बाहर निकलने से रोक सकें। This we read in Matthew chapter 28 verse number 62. हम इसे मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 27 की 62 में हम पढ़ते हैं। 27:62.
Now the next day that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, saying, Sir, we remember that deceiver said, while he was yet alive, after 3 days I will rise again. दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावन, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। Our Lord Jesus Christ foretold that he will rise again on the 3rd day. हमारे खुदावंद यीशुआ ने पहले ही बताया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। But these people were trying to stop his resurrection. लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग खुदावंद यीशुआ के जी उठने को रोकना चाहते थे। But the word of God is telling us in Romans chapter 1, लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है? देखें रोमियो की किताब बाब नंबर 1 verse number 4 onwards. चौथी आयत से लेकर, And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. लेकिन पाकिज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। Our Lord Jesus Christ risen from the dead, he is no more in the death. हमारे खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे हैं, मुर्दों में शामिल नहीं हैं। And by the resurrection, our God declared that our Lord Jesus Christ is the Son of God with the power according to the Spirit of holiness. और इस तरीके से पाकिज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ हमारे खुदा ने क्या किया था? खुदावंद यीशुआ को खुदा का बेटा ठहराया। Through the resurrection of our Lord Jesus Christ, or in the resurrection of our Lord Jesus Christ, we have many blessings as a believers. हमारे खुदावंद यीशुआ की क़ियामत या जी उठने की बदौलत यीशुई मोमिन होने के नाते हमारे लिए बहुत सारी नेमतें हासिल हुई हैं। This evening, let us meditate on few blessings as a believers we are receiving in the resurrection of our Lord Jesus हमारे Christ. खुदावंद यीशुआ के जी उठने में यीशुई मोमिन होने के नाते हमें क्या-क्या नेमतें हासिल हुई हैं, इन बातों पर हम जरा गौर करेंगे। Romans chapter 4 verse number 25. रोमियो की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 25। Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। Our Lord Jesus Christ was delivered for our offenses. हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे गुनाहों के खातिर हवाले कर दिए गए। That means he was crucified for our offenses. इसका मतलब ये हुआ है कि हमारे गुनाहों के वास्ते हमारे खुदावंद यीशुआ सलीब पर मसलूब हो गए। He died for us on the cross of Calvary. हमारे वास्ते कलवरी के सलीब पर खुदावंद यीशुआ मसलूब हुए। Because according to Ephesians chapter 2, we supposed to die on that cross. क्योंकि एफिसियों की किताब बाब नंबर 2 के मुताबिक हमें उस सलीब पर मसलूब होना था। That means we supposed to receive that punishment of death. मतलब हमको इस मौत की सजा हम पर आनी थी। Because we were dead in our sins and our trespasses. क्योंकि हम तो हमारे गुनाहों और कुसूरों की वजह से हम मुर्दा थे। The punishment supposed to be fell upon us. ये सजा जो थी हम पर आनी चाहिए थी। And we were by nature the children of wrath, even as others. और हम भी औरों की तरह गज़ब इलाही के फर्जंद रहते थे। But for our sins, for our sake, our Lord Jesus Christ delivered to die for us on the cross of Calvary. लेकिन हमारे गुनाहों की खातिर हमारे खुदावंद यीशुआ ने अपने आप को सलीब पर मसलूब व मकतूल होने के लिए हवाले कर दिए। And the second part of this verse in Romans chapter 4 verse number 25 is saying that और रोमियो की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 425 में दूसरा हिस्सा ये कहता है, and our Lord Jesus Christ was raised again for our justification. और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया।
Our Lord Jesus Christ's resurrection brought us the justification. हमारे खुदावंद यीशुआ की क़ियामत या उनका जी उठना हमें रास्तबाजी हमें अता की है, Because he is risen, we are justified. क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे हैं, हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। So that means that our sins are fully forgiven, इसका मतलब ये होता है कि हमारे सारे के सारे तमाम गुनाह मुआफ किए जाते हैं and now we are justified that we can stand before God as He accepting. और अब हम खुदा के सामने रास्तबाज ठहरते हैं ताकि जिस तरह वो चाहता है बेगुनाह होकर उसके सामने हम खड़े हो जाएं। Acts chapter 13, verse number 38 and 39 also says, आमाल की किताब चैप्टर 13 आयत नंबर 38 and 39. 38 और 39 में हम पढ़ते हैं। 38. Let us read. Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things from which ye could not be justified by the law of Moses. बस ए भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीले से तुमको गुनाह की मुआफ़ी की खबर दी जाती है और मूसा की तौरा के बाइस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बाइस बरी हो जाता है। Our Lord Jesus Christ preached the forgiveness of sins, and through His death and resurrection we are being justified. हमारे खुदावंद यीशुआ ने गुनाहों की मुआफ़ी का ऐलान किया था, पैगाम दिया था और खुदावंद यीशुआ के जी उठने से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। Because our Lord Jesus Christ is alive now, we are no longer condemned, but we stand righteous before our God. क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ अब भी जिंदा हैं, इसीलिए खुदावंद यीशुआ की क़ियामत या जी उठने में ईमान लाने वाले हम अब खुदा की नजर निगाह में हम सजा नहीं पाएंगे, बल्कि बेगुनाह साबित होकर ठहरेंगे। This is one blessing that we receive through the resurrection of our Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ के जी उठने की बदौलत ये एक बरकत है या नेमत है जो हमको मिली है। And the second blessing we receive, because He is risen from the dead, we are saved. और दूसरी नेमत जो हमें मिली है खुदावंद यीशुआ की जी उठने के सबब से, वो ये है कि हम नजात याफ्ता बने हैं। Romans chapter 10 verse number 9 says, रोमियो की किताब बाब नंबर 10 और आयत नंबर 9 में पढ़ते हैं। Romans chapter 10 verse number 9, रोमियो की किताब 10 की 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in the heart that God hath raised him from the dead, you shall be saved. कि अगर तू अपनी जबान से यीशुआ के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो नजात पाएगा। If we confess with our mouth that our Lord Jesus Christ and believe in our hearts that God raised him from the dead, then we will be saved. अगर हम अपनी जुबान से इकरार करेंगे कि खुदावंद यीशुआ खुदावंद हैं और अगर दिल से ये ईमान लाएंगे कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो हम नजात पाएंगे। As the believers, as the people who received the grace of God, we believe in the death of our Lord Jesus Christ and the resurrection of our Lord Jesus Christ. खुदा के लोग बनने के नाते, खुदा के फर्जंद होने के नाते हम क्या करते हैं? खुदावंद यीशुआ के मुर्दों में से जी उठने की बात पर और खुदावंद यीशुआ के हमारे खुदावंद होने की बात पर हम ईमान लाते हैं। Because of his resurrection, we are saved now. खुदावंद यीशुआ के जी उठने की बदौलत, उस वजह से अब हम नजात पाए हैं। And we are saved and we have no condemnation. और इस तरीके से हम नजात पाए हैं और हम पर किसी भी सजा का हुक्म नहीं होता। 1 Corinthians chapter 15 verse number 17 says, पहले कुरिन्थियों की किताब 15 की 17, if Christ be not raised, for your faith is vain, ye are yet in your sins. और अगर माशियख नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो।
our Lord Jesus Christ risen from the dead, we are no more in sin now. क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मुर्दों में से जी उठा, अब हम गुनाहों में गिरफ्तार नहीं हैं। Our sins are forgiven हमारे गुनाह मुआफ हो चुके हैं and we are made justified before और God. खुदा के सामने हम रास्तबाज बनाए गए हैं। And also Hebrews chapter 7 verse number 25 says, और इब्रानियों की किताब 7 बाब नंबर 7 verse number 25, और आयत नंबर 25 में लिखा हुआ है, Hebrews chapter 7 verse number 25, इब्रानियों की किताब 7 की 25, therefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफाअत के लिए हमेशा जिंदा है। Our Lord Jesus Christ liveth forever because he is risen from the dead. हमारे खुदावंद यीशु हमेशा के लिए जिंदा हैं क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठे हैं And he is able to save us to the uttermost that और- come unto God. और क्योंकि हम खुदा के पास आए हैं उनकी बदौलत वो हमें पूरी पूरी नजात दे सकता है। So the word of God telling us that because of our Lord Jesus Christ's resurrection, we are saved. तो इस तरह खुदा का कलाम हमें यूं बताता है कि क्योंकि हमारे खुदा यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, जिंदा हैं, इसीलिए हम नजात पाते हैं। We are saved to the utmost. हम पूरा का पूरा नजात पाते हैं। And the third thing, through the resurrection of Lord Jesus Christ, we received is that we are empowered. और तीसरी बात यह है कि हमारे खुदावंद यीशु के जी उठने से हमें ताकत मिलती है। Ephesians chapter 1, इफिसियों की किताब बाब नंबर 1, Ephesians chapter 1 verses 19 and 20. इफिसियों की किताब बाब नंबर 1 और आयतें 19 और 20। And what is the exceeding greatness of his power to usward who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, क्योंकि उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुवाफिक जो उसने माशियख में की जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया। Through the resurrection of our Lord Jesus Christ, we received exceeding greatness of his power. हमारे खुदावंद यीशु के मुर्दों में से जी उठने की वजह से हमें बहुत बड़ी ताकत मिली है। Our Lord Jesus Christ filled us with the power of spirit. हमें हमारे खुदावंद यीशु ने रूह की कुदरत से, ताकत से हमें भर दिया है। Romans chapter 8 रोमियो की किताब बाब नंबर 8 verse number 11 also says, और आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है, But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. और अगर उसी का रूह तुम्हें बसा हुआ है जिसने यीशुआ को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने माशियख यीशुआ को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदन को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम्हें बसा हुआ है। Our mortal bodies which are weak, which are dead, were strengthened by the power of the God. हमारे फानी बदन जो हैं इनको फिर से खुदा जिलाएगा क्योंकि खुदा का रूह जो है वो हमें बसा हुआ है। This power we can only experience when we forsake everything of this world. इस दुनिया का सब कुछ जब हम तर्क करेंगे उसी वक्त हमें ये कुदरत खुदा की आती है। In Philippians, the word of God is telling us that chapter 3 verse number 10, फिलिपियों की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 10 में लिखा हुआ है, how to experience this power of God. खुदा की ये कुदरत जो है उसे किस तरह हम महसूस कर सकते हैं। Philippians chapter 3 verse number 10, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death,
और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं। So here in 8th verse we read that from 8th verse, yeah, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. लेकिन जितने चीज 8वीं आयत, बल्कि मैं अपने खुदावंद माशियक यीशुआ की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ ताकि माशियक को हासिल करूँ। When we count everything in this world as nothing, and then we can experience the power of Lord Jesus Christ. जब हम इस दुनिया की हर चीज को कूड़ा समझते हैं, तभी हम हमारे खुदावंद यीशुआ की कुदरत को समझ सकते हैं। And the fourth thing that we receive through the resurrection of Lord Jesus Christ और is चौथी बात यह है हमारे खुदावंद यीशुआ के जी उठने से जो हमें हासिल हुई है, 1 Corinthians chapter 15. पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 15, 1 Corinthians chapter 15 verse number 20. पहला कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 15 और आयत नंबर 20। But now is Christ risen from the dead and become first fruits of them that slept. लेकिन फिलवाक़े माशियख मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। To understand this thing, that we need to see few more things, that what this verse is telling us, that our Lord Jesus Christ is risen from the dead as a first fruits from them that slept. हमारे खुदावंद यीशुआ इस कलाम के मुताबिक ये हुए हैं कि जितनों ने सोए हैं उन सबों में से जी उठने में, मतलब उन सबों में से पहला पल होकर जी उठा है। And 1 Thessalonians chapter 4 verse number 14, and that passage also tells us that 1 Thessalonians chapter 4, पहला थिस्सलुनीकी की किताब बाब नंबर 4 1 Thessalonians chapter 4 verse number 14. और आयत नंबर 14। If we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशुआ मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशुआ के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। And 17th verse says that then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। So these verses telling us that as our Lord Jesus Christ risen from the dead, और ये आयतें इस तरह हमें ये बताती हैं कि जिस तरह खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठा, we those who believe in the Lord Jesus Christ also will be raised from the dead to meet our Lord in the air. हमें भी जिन्हें खुदावंद यीशुआ ने मुर्दों में से जिलाया है, हमें भी उठाकर ले जाएंगे ताकि हम बादलों में आसमानों में खुदावंद यीशुआ को मिलें। Because our Lord Jesus Christ risen from the dead, we also will raise from the dead. क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे हैं, हम भी एक दिन जरूर मुर्दों में से जी उठेंगे। Death is not our end, but resurrection is our destiny. हमारा अंत जो है, इख्तिताम जो है, मौत नहीं बल्कि हमारे लिए एक अंजाम है और एक मकसद है, और उस अंजाम तक हम पहुंचेंगे वो है खुदावंद यीशुआ में हमेशा की जिंदगी। People, those who are in this world, death may a fear and an enemy to them. इस दुनिया में जो भी लोग हैं, जितने भी हैं, उन सबों को ऐसा लगेगा कि मौत उनका दुश्मन है और मौत से वो लोग कांपते हैं। Before we come to our Lord Jesus Christ, we are all dead in our sins. हमारे खुदावंद यीशुआ के पास आने से पहले हम सब भी गुनाहों में, अपने अपने गुनाहों में मुर्दा थे। And at the end, the wages of sin is death. और गुनाहों की मजदूरी तो मौत है। And after death, if we don't have Lord Jesus Christ in our hearts, after the death we will go to the punishment. अगर हमारे अंदर खुदावंद यीशुआ नहीं है, उन पर ईमान नहीं लाए हैं, नजात दहिंदा करके नहीं माने हैं, तो मौत के बाद हम
खुदा की अदालत में जाएंगे। For everyone, death seems like an enemy who is dragging them to the punishment. दुनिया के हर इंसान की नज़र में ऐसा रहता है कि मौत ऐसा दुश्मन है जो उन्हें खींच कर ले जाता है। But now in Lord Jesus Christ, because of his resurrection, लेकिन अब खुदावंद यीशुआ में, क्योंकि खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे हैं, he defeated the death. उन्होंने क्या किया? गुनाह मौत को नेस्त कर दिया। And now our Lord Jesus Christ turned the death for us as a way to glory. और अब खुदावंद यीशुआ उस मौत की राह को हमारे लिए क्या बना दिया? उन्होंने उस राह को जलाल का राह बना दिया। Through the death, after that, we will enter into the glory of God. इसलिए इस वास्ते हम सब मौत के बाद फना नहीं होंगे, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाकर खुदा की बादशाहत में हम शामिल होंगे। Romans chapter 6 verse number 23 says, रोमियो की किताब 6 की 23, Romans chapter 6 verse number 23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशुआ में हमेशा की जिंदगी है। Death is sure for every living being. हर एक जानदार के लिए मौत एक हकीकत है। For every man on this world, death is sure. हर एक इंसान के लिए जो इस जमीन पर है, मौत मुकर्रर है। But the death, same death, brings us to the glory of God. लेकिन यही मौत जो है हमें खुदा के करीब ले आती है। After the death, we will receive the eternal life through our Lord Jesus Christ. क्योंकि मौत के उस पार हम हमारे खुदावंद यीशुआ में हमेशा की जिंदगी हासिल करते हैं। Because death was defeated by Lord Jesus Christ. क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ ने मौत को उन्होंने हराया। And the fifth thing is that through the resurrection of our Lord Jesus Christ is that we have the living hope. और हमारे खुदावंद यीशुआ की मुर्दों में से जी उठने की बात से हमें पांचवी बात यह हासिल होती है कि हमें जिंदा उम्मीद हासिल होती है। 1 Peter chapter 1, पहला पत्रस बाब नंबर 1, 1 Peter chapter 1 verse number 3. पहला पत्रस 1 की 3। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. हमारे खुदावंद यीशुआ मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशुआ मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। We have this hope which is live, which is a new hope in our Lord Jesus Christ. हमारे साथ ये उम्मीद है, ये उम्मीद जो हमारे खुदावंद यीशुआ में है और उनकी बदौलत ये जिंदा उम्मीद हमें हासिल है। It is a living hope. ये जिंदा उम्मीद है। We have this hope because of our Lord Jesus Christ who is raised from the dead. हमारे वास्ते मुर्दों में से हमारे खुदावंद यीशुआ ने जी उठा और इस वजह से हमें ये जिंदा उम्मीद हासिल हुई है। Hebrews chapter 6 verse number 19 says, इब्रानी की किताब 6 की 19 में लिखा हुआ है, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दे के अंदर तक भी पहुंचता है। Because of our Lord Jesus Christ resurrection, we have this strong hope which is steadfast and sure. हमारे खुदावंद यीशुआ के मुर्दों में से जी उठने की वजह से हमें ये उम्मीद हासिल हुई है जो साबित है और कायम है। And the resurrection of our Lord Jesus Christ is like an anchor for our souls. और हमारे खुदावंद यीशुआ के मुर्दों में से जी उठना जो है वो हमारी जान का एक लंगर है। As it is sure that our Lord Jesus Christ risen from the dead, sure we will be with him through our Lord Jesus Christ. क्योंकि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ मुर्दों में से जी उठने की बात हकीकत है, हम भी यकीनन मुर्दों में से जी उठेंगे। Our Lord Jesus Christ is the
God of hope for us. हमारे लिए हमारे खुदावंद यीशु कौन है? उम्मीद के खुदा हैं। We saw 5 things that because of our Lord Jesus Christ risen from the dead, we are justified. हमने 5 बातें देखी हैं। पहली बात यह है कि हमारे खुदावंद यीशु के मुर्दों में से जी उठने से हम रास्तबाज ठहराए गए हैं। Because he is risen from the dead, we are saved. और क्योंकि खुदावंद यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं, हम नजात पाए हैं And we are empowered. और हमें ताकत मिली है And we will rise again. और हम फिर से जी उठेंगे And we have the living hope. और हमारे सामने हमेशा जिंदा उम्मीद है। Through the resurrection of our Lord Jesus Christ, God gave us these 5-fold blessings in our lives. हमारे खुदावंद यीशु के मुद्दों में से जी उठने से खुदा ने हमें हमारी जिंदगियों में ये 5 तरह की बरकतें हमें बख्शी है। Because of this, let us worship our God through our Lord Jesus Christ. इन बातों को लेकर, इन बातों के मुताबिक हमारे खुदावंद यीशु के जरिए से हमारे खुदा और आसमानी बाप की हम्द व सना और इबादत हम अब करें। Amen. आमीन।